तं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा मुझ में तो कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, और जो कुछ है वो तेरा है। और जो कुछ है वो तेरा है। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा। क्या लागे है मेरा। मेरा निश्चय है एक यही, मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस दुनिया का, अर्पण कर दूं इस दुनिया का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद ही। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इसे पूजक के एक रंग का, इस पूजक की एक एक रंग का, होतार तुम्हारे हाथों में। होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। आत्मबोध प्रसंगरे वर्तमान जो कहउछन्ते श्लोक 53 रे उपाधि विलयात, उपाधि विलय एमते उपाधि विलय गोटे होची वास्तविक हेबा, आगोटे होची मिथ्या ज्ञान भाविबा। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति रे
ଉପାଧି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଉପାଧିକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବିବେ। ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତୀତି ତାର ନଷ୍ଟ ହବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ବୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନଟା କଣ ହବ? ମିଥ୍ୟା ଭାବ ରହିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆକାଶର ନୀଳିମା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାଶକୁ ନୀଳି କହୁଥିଲେ, କାରଣ ନୀଳିମା ଅଂଶ ଯୋଗୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ କି ନାଇଁ ନୀଳିମା ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଅନ୍ୟ ଯୋଗୁ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ହଉଛି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବିବାଟା ମାନେ ପ୍ରତୀତିଟା ନଷ୍ଟ ହବନି, କିନ୍ତୁ ରଜ୍ଜୁ ଏବଂ ସର୍ପର ପ୍ରତୀତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ, ଯଦି ବ୍ୟବହାର କାଳରେ ଆପଣ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତୀତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବେ ଆକାଶର ନୀଳିମା, କାରଣ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଜଗତ ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ ଆଉ ନୀଳିମା ଦେଖାଯାଉନି। ଦେନ୍ ରଜ୍ଜୁ ସର୍ପ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିଯିବ। ଏମିତି କେମିତି ଦିଟା କଥା ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆକାଶ ନୀଳିମା, ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଦେଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବିଚାର ବି ହଉଛି, ମାନେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୃଢ ହେଇନି। ଦୃଢ ଭୂମିକା କହନ୍ତି, ସପ୍ତ ଭୂମିକା କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମବିତ୍, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତମ ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଜଗତଟା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣି ହଉଛି। ଯଦି ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣି ହଉଛି ତାମାନେ ଜାଣିନା ଆକାଶ ନୀଳିମା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୃଗ ମରୀଚିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୃଗ ମରୀଚିକାରେ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ନା ଏଟା ପାଣି ନାହିଁ, ଏଟା ବାଲିର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆଦି, ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ରଜ୍ଜୁ ସର୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ପଟା ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ଖମ୍ବ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୂତଟା ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ରହୁନି। ଓନ୍ଲି ମାନେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଅଧ୍ୟସ୍ଥଟା ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ନୀଳିମାରେ ଯୋଉ ଆକାଶର ଧର୍ମ ରୂପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମିଥ୍ୟା। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ସଂସାର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ମାନେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସମୟରେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲିଭିଂ, ଶରୀର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ମନ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି, କ୍ରିୟାକଳାପ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ମାନେ ସତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଥିଲା ସେଟା ଲିନ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ଚାଲିଗଲା, ବାସନା ଖତମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅବଶେଷ ଯୋଗୁ ଶରୀରଟା ଥିଲା, ପ୍ରାରବ୍ଧ ସମାପନ। ତ ଉପାଧି ବିଲୟାତ ଯୋଉ 53 ରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଦେହ ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣରେ କହୁଛନ୍ତି। ଉପାଧି ବିଲୟାତ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଥି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତିନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ? ଜଳ ଜଳରେ ମିଶିଲା, ତେଣୁ ଯୋଉ ଘଡାରେ ଜଳ, ଲୋଟାରେ ଜଳ, ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଞ୍ଜୁଳାରେ ଜଳ ଦଉଛୁ,
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବା ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ତ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ନେଲୁ ବା ସେଇ ନଦୀରୁ ହିଁ ପାଣି ନେଲୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ପାଣିରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଜଳ ଜଳରେ ଲୀନ ହେଲା ଭଳିଆ। ତ ଯୋଉ ହାତର ଜଳଟା ବା ଘାଟର ଜଳଟା, ବାଲ୍ଟିର ଜଳଟା, କଳସର ଜଳ, ଲୋଟାର ଜଳ ଭାବନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା। ଆଉ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଯୋଉ ତାଲାବର ଜଳ ଭାବନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା ଜୀବାତ୍ମା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ଅଂଶ। ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଂଶ। ମମତା ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ନା ଆମେ ତ ଅଂଶ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନା ହଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଅନୁଭବ କରେ ଅଂଶ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଘଟ ଘଟାକାଶ ମହାକାଶ ଲାଗୁଛି କି ଘଟ ଆକାଶ ଅଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମମୈବ ଅଂଶୋ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତମ ସେଇଠି ବତେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମମ ମାନେ ସେଠି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଅଂଶର ଜୀବ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅଂଶ ଇବ। ସତରେ ଅଂଶ ନୁହଁ, ଅଂଶ ଇବ କହୁଛନ୍ତି ଭଳିଆ। ଯେମିତି ଘଟାକାଶ ଲାଗୁଛି ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ମହାକାଶ ଘଟାକାଶ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆକାଶକୁ କେବେ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଘଟ ଯୋଗୁ କହୁଛୁ କି ଇଏ ଘଟାକାଶ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ କହିବ ନା ମୋର କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ। ତମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର କରିକି ତାକୁ କହିଦଉଛ ଘଟାକାଶ ଏ ମହାକାଶ ମାନେ ସରି ମଠାକାଶ। ତମେ ଗୋଟେ ଘୋଡାଟା ଆଣିକି କହିଦଉଛ କି ମଠାକାଶ ଏ ଘଟାକାଶ ଏମିତି ସବୁ ଆକାଶ ନାଁ ଦଉଛ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମୁଁ ଗୋଟିଏ, ମୋର କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏନି, ଛେଦ ହୁଏନି। ଏ କଥାଟା କହୁଛ। ତ ଜଲେ ଜଲମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଇଏ ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଳ ଜଳରେ। ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବା କି? ଆପଣ କେତେ ଆଜିକାଲି କଣ ଭାଇରାଲ ସବୁ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଖିଥିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ତାପରେ ସେଇଠୁ ଜୀବାତ୍ମା ବାହାରୁଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫିରୁ। ସେ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ନା ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷଟେ। ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉ ବାହାରିବ ସେଟା ଦେଖି ହବନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଜୀବାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାକୁ ଦେଖି ହବନି। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ପ୍ରାଣର ଅଂଶଟା ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଅଗରବତୀ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଅଗରବତୀ ଯାଉନି, ଅଗରବତୀର ଧୂଆଁଟା ଯାଉଛି। ଘରେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଗୋଟେ ଘରେ କାଠର କଣା ଥିବ, ଝରକାର ଗୋଟେ କାଠର ଯୋଉ ଥିବ ସେ କଣା ହେଇଥିବ, ସେ କଣାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ, ଆମ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢା ନା ଫିଜିକ୍ସରେ, ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କଣିକା ଯାକ ସବୁ ଥାଏ। ତ ସତରେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଥାଏ? କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ସ୍ଥୂଳ ରୂପର ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ବିୟଦ ବୁମ୍, ବୁମ୍ ନେଇ। ବିୟଦ ବୁମ୍ ମାନେ ଆକାଶ, ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶ କଥା ଚାଲିଛି। ଆକାଶ ଆକାଶରେ ଘଟାକାଶ, ଘଟଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଆକାଶରେ ଲିନ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଜସ୍ ତେଜ, ତେଜ ତେଜରେ ସେ ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଜଳ ଜଳରେ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ତେଜ ତେଜରେ, ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଆକାଶ ଆକାଶରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଲୀନ କଥା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହଉଛି। ଆକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ମୀରାବାଇ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାଧିପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଲିନ ହେଇଗଲେ। ଲିନ କଣ, ଶରୀରଟା ପଡିଯାଇଥିବ, ଫିର ଯୋଉମାନେ ନେବା କଥା ଶରୀରଟାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବେ।
जीवात्मा परमात्मा कथर लीन है नदीटा समुद्र लीन है जाउछि सेतै गीतारे भगवान द्वितीय अध्याय 70 श्लोक रे कहउचंती यथा आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत अर्थात अनेक नदी जल परिपूर्ण है आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठा समुद्र रे कौन हुए मिशि जाए सेमती तद्वत कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे समस्त भोग जिते कर दियंती सारी दियंती स्थित प्रज्ञार जो लक्षण ये कहते कौन सा विकार उत्पन्न न होके से मिशि जाते कौटी परम शक्ति मुंडक उपनिषद मध्य ताहा कहा जाय छै कि जीवात्मा परमात्मा ठारे लीन जो होछि सेटा केमती लीन होछि बुझौछन मुंडक उपनिषद बाहर कर कहछि यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रंतम गच्छन्ति नाम रूप विहाय ये बड़ा परफेक्ट श्लोक था एठु नहीं छंदे भगवान शंकराचार्य ना जेमिति नदी समुद्र अस्तम गच्छन्ति अनेक नदी गंगा जमुना सरस्वती से तो फिर त्रिवेणी हो गले संगम उत्तराखंड रे 5 प्रकार संगम अच्छे ना देवप्रयाग रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग केवे मंदाकिनी अवलकानंदा रुद्रप्रयाग रे तो माने दीटा नदी जतले मिसी जाउछन तो सेमती यथा नद्यः अनेक नदी स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति ताले कोन हो नदीर नाम और रूप रहिबने नाम रूप विहाय नाम रूप को त्याग कर दो जले जलम आकाश आकाशे तेजस तेजसी क्षमिति तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः विद्वान नाम रूप तारा और नाम रूप रहिबने परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम परात परम पुरुष को प्राप्त कर दिए ठीक छांदोग्य उपनिषद रे मध्य या ही कहा जाय छै कौन कहछन छांदोग्य उपनिषद रे कि सेई तत्व कथाटा कहछन तेणु एटा मन रखिथे चले जलम आकाश जो अच्छी नाम रूप विहाय आ जल जो घटरे थिला ना सेटा को से त्याग करने पड़ो सेमते जीवात्मार नाम रूप हटाई दिए उपाधि हटाई दिए उपाधिटा नष्ट हो बेशहानतः उपदेश उपदेशार कहते गोटे शब्द बेशहानतः बेश मान जो उपाधि अच्छी बेश ड्रेस भिकारी मध्य गोटे बेश राजा मध्य गोटे बेश ना राजा परमानेंट ना भिकारी परमानेंट जी ड्रेस पिंधुची सी परमानेंट ड्रामा रे सी ही राजा होची से व्यक्ति अन्य सीन रे सी ही भिखारी होची भेषहानतः स्वरूप एकतः स्वरूप एक देखते गीतार 4th चैप्टर में देखिवा अनेक यज्ञ थिला
से भितर गोटे ब्रह्मयज्ञ होता। ब्रह्मयज्ञर माने कौन ना आत्मा को ब्रह्मरे लीन करिया। तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय रे अनेक यज्ञ थिला। से यज्ञ गोटे यज्ञ होछि कि एक तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः और एक है दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञन उपजुहति। ब्रह्म यज्ञ कौन ब्रह्मरे जीवात्मा को लीन करिया अर्थात त्वम पदार्थ को तत्पदार्थ रे लीन सोपाधिक को निरुपाधिक ब्रह्मरे लीन। जल कौन सोपाधिक जीवात्मा छोट आकाश छोट तेज तीन टा एग्जांपल दौरान बड़ तेज रे मिसिगला। ए जन बर्तमान गोटे दीप जलुची ए दीप को जतला हम लिभि दउची तार प्रकाशटा गला कुआडे प्रश्न हो तात प्रकाशटा मूल प्रकाश रे पड़ जाउची समष्टि प्रकाश रे मिल जाउची याको कहंते विदेह मुक्ति। नेक्स्ट 54 टा 54 यल्लाभान्ना परो लाभः यल्लभार्ना परो लाभः यत्सुखान्ना परं सुखम् यत्सुखान्ना परसुखम् यज्ञानात् ना परं ज्ञानम् यज्ञानान्ना परं ज्ञानम् तद्ब्रह्मेत्यवधारये। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। ये वर्तमान जो श्लोक अच्छी ना 3-4 तद्ब्रह्म इति अवधारयेत् ये शैली जीव लास्ट ताकू ही ब्रह्म बोली भाव तद्ब्रह्म इति अवधारयेत् ताही ब्रह्म बोली धारणा कर अवधारयेत् माने धारणा कर ताकू ही जानो से ही परमात्मा ब्रह्म को धारणा कर ब्रह्म भावना। एबे 54 55 56 आदि रे सेम शैली रही तद ब्रह्म इति अवधारे कौन यल्लाभ ना परो लाभ एमतिया लाभ से आउ लाभ नहीं सर्वश्रेष्ठ लाभ से यत् सुखात ना परम सुखम या भलिया आउ सुख बिल्कुल नहीं सर्वश्रेष्ठ सुख है है आ भलिया फिर यद ज्ञानात ना परम ज्ञानम अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आपको जानला पर आउ किछ जानिबा पय आवश्यक नहीं आपको ही तमे ब्रह्म जानो। ये जो शैली ना या कहते तटस्थ लक्षण ये 3टा जगह तटस्थ लक्षण कौन तटस्थ लक्षण भिन्नत्वे सति तत्बोधकत्वम तटस्थ लक्षण अर्थात जो पदार्थ लक्षण माने कौन जे देखे हो इंडिकेशन इंडिकेट करो दर्शित करो जमते बर्तमान आमर सपोज मु चिन्मय जागृति आम चिन्मय मिशन पटियालार ना चिन्मय जागृति कि जे नुआ रे आसीबो तो मु कोन कहबी आश्रम ये मंदिर अच्छी तो मंदिरटा हूँ स्वरूप जीव स्वरूप लक्षण तद भिन्न अभिन्नत्वे सति अभिन्न से हनुमान मूर्ति अच्छी ओपन टू स्काई बहुत बड़ा गेट अच्छी चिन्मय जागृति लिखाई प्रवेश करो जो गोटे यज्ञशाला अच्छी 2टा गाड़ी पार्किंग अच्छी सामने सुंदर लॉन टे अच्छी गछपत्र अच्छी आउटे गला को डाइनिंग हॉल
फिर रूम जाक अच्छी फिर गोटे रूम रे लिखा है स्वामी माधवानंद ये सब कौन स्वरूप लक्षण चिन्मय जागृति आश्रम पाए तटस्थ लक्षण कौन सी क्लास को जदि कहुई क्लास को आस 5टा ରୁ 6ଟା हाँ से समय मु तटस्थ लक्षण कहि कि बहुत कार सब थी डिवट मैंने कार आनी रखि तो जान जो कार थी जो आश्रम आगरे जो घर आगरे ताकू जान कि आम आश्रम तटस्थ लक्षण बा रोड रे लिखाई श्रीराम मंदिर कारण से पवन रे हटि जाई पारे बीपी पेट्रोल पंप सामना ताने बीपी पेट्रोल पंप रोड सामना रे अछि सेटा होची आश्रम रो अंग नु कि आश्रम को देखौची अपोजिट बीपी पेट्रोल पंप अपोजिट करके देखाइला जो घरे कुआटी बसथिव ना काउटी बस से घर को तुम जाओ तुम गला बेलू काउटी उड़ी गलानी जाओ तुम जानिछ 1 2 3 4 रे से कहछने आ जो घरे गाई ठिया थो कारण से माँ जनक गाई को सबुदिन रुटी दियंती एणु गाई से ठिया ही जाए आपण गला बेलू गाई नाही किंतु आपण जानिछन मन रहिछन सेटा तो गाई काऊ कार पेट्रोल पंप ये सब तटस्थ तटे स्थित लक्षयते कहीं के तट कह जाए कहानी कह जाए माने कथा बुझिया पूर्व काल जो जहाज जाती ना जो फेरती स्वागत करने पत्नी आदि परिवार था तेणु से माने तटर रही तटर रही देखा ओ जहाज आस तटे स्थिता तटे स्थित्वा लक्षयते तटस्थ लक्ष्य आगु आको कहते चंद्र शाखा न्याय जो माने माँ माने चंद्र को देखिले ही खाते सूर्य को देखिले ही खाते अब द्वितीय चंद्र देखा बड़ा मुश्किल हो जाए तेणु छुआ माने बा किए जने देखा देख तो खजुरी गछ देखुच हाँ खजुरी गछ अनेक डाल अच्छे ना यस एपट लेफ्ट साइड डालटा को देख हाँ देखिली ओनली डालटा को देख ओके डालर अगटा को देख हाँ जस्ट अग पछपटे देख चंद्र देखा जाऊँ हाँ तो बर्तमान चंद्र को जो देखिले ना ये डाल अग सब छाड़देले मुख्य हूँ चंद्र चंद्र को देखापी प्रयोग करा छाड़ी दिया जामती यल्लाभा ना परो लाभ अर्थात ये एमतिया लाभ आउ लाभ आवश्यक नहीं से हूँ तटस्थ लक्ष्य यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते जहाँ ठारू समस्त प्राणी उत्पन्न होती येन भूतानि संविशन्ति येन भूतानि जीवन्ति अर्थात जहाँ ठारे जहाँ द्वारा प्राणी माने जीवित होते एवं जहाँ ठारे प्राणी लीन हो जाते तद ब्रह्म आको ही ब्रह्म जान तैत्र उपनिषद कह तटस्थ लक्षण यल्लाभ ना परो लाभ एमतिया गोटे लाभ आउ लाभ आवश्यक नहीं आउ मनटा आम लाभ आड़ को जीवन प्राप्त कर दे आम लाभ कहीं चाहूँ कि प्राप्त करने आत्मा तो सततम प्राप्त मन रखु सुकंठाभरणम यथा अप्राप्तवत देखा जाउछ अप्राप्तवत किंतु सतरे पाइबा हेले किछ आवश्यक पड़िबनी 44 थिला आत्मा तो सततम प्राप्त अपि अप्राप्तवत अविद्या अविद्या जगो अप्राप्त भलिया लगुचे तन्नाशे प्राप्तवत भाति तन्नाशे माने अविद्या नाशे अज्ञान नाशे प्राप्तवत भाति अरे मिलगला बोली कहूँ प्राप्तवत भाति स्वकंठाभरणम यथा जमते कंठरे आभरण से आत्मा हूँ सततम प्राप्त जो से जानी दौचे
आउ कौन प्राप्त करने पे इच्छा हो, आउ कौन लाभ लाभ करने पे इच्छा हो। यत् सुखमात् न परम सुखम, सुख स्वरूप ये त्रैलोक्य सुपासी, राम स्वरूप ये सुख स्वरूप ये सुख स्वरूप ये सुख यज्ञाता यज्ञानात ना परम ज्ञान। आपको जान पर आउ ज्ञान आवश्यक नहीं। कस्मिन्नु इदम सर्वम विज्ञातम भवति, एमती कौन गोटे ज्ञान अच्छी जो ज्ञान समस्त ज्ञान हो। देखो मेटेरियल ज्ञान रे ऑब्जेक्टिव साइंस रे बाहर ज्ञान रे एटा मिलेनि। फिजिक्स जानले केमिस्ट्री जानिबानी, केमिस्ट्री जानले फिजिक्स जानिबानी, इंग्लिश जानले साइंस जानिबानी, साइंस जानले इंग्लिश जानिबानी। प्रत्येक सब्जेक्ट रो नॉलेज आवश्यक, किंतु आत्मज्ञान हो गला पर सब किछि जानले, सब किछि जानले का अर्थ है ना कि फिजिक्स जान देले। अर्थात जानले फिजिक्स कौन वो मैटर विषय, केमिस्ट्री कौन केमिकल्स विषय, बॉटनी कौन प्लांट्स विषय रे, बायोलॉजी बॉटनी, जूलॉजी कौन एनिमल विषय है। तो सी एनिमल रो टोटल जानिबो बोले नहीं, ये जो साइंस अछि नहीं, सी कौन करिवो एनिमल रो मूल कारण। बचन तो मु जेमती कहिथले, बहिटे देखुतला, पिलाटी देखिला, बापा पचारले बा पिला पचारला कौन देखुचंदी कौन करूचंदी आपण, आपण हाथ रे कौन अछि बही। से बही रु गले कुआडे कुआडे देखन तो, बही रु गले कागज, कागज रु गले बैम्बो बाउंस, बाउंस रु गले पृथ्वी, बस तापर तो आरंभ हो गला कॉमन। सेमती बर्तमान बायोलॉजी रे देखंतु, बायोलॉजी रे से डिटेल प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन एनिमल्स जानिबनी, किंतु तत्वटा जान दो केमती। एनिमल माने शरीर हैला, सी जानदेला ओ ये शरीर माने तुरंत जानदेला पंच महाभूत, आरंभ हो गला। पंच महाभूतर कारण किए गया मु डिटेल कहूनी, पृथ्वी तत्व जल सब जानदेला से। तामस अहंकार तार कारण के महतत्व, तारण हिरण्यगर्भ, देन प्रकृति, देन ब्रह्म। तामाने से बायोलॉजी डिटेल जानिबनी आवश्यक नहीं, सी आत्मज्ञान जानदेला माने से आत्मा बायोलॉजी भी जान दो माने बायोलॉजी रे जो स्टडी होची तार मूल होची आत्मतत्व जानुची। फिजिक्स मध्ये मैटर कौन सी भी मैटर पढ़ो सी आत्मतत्व को जानी दउची, कारण अल्टीमेटली कारण 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 आत्मा आड़ को जाउची। सेथिमें आत्मज्ञान हो गले समस्त ज्ञान हो जाए। यज्ञानात् ना परम ज्ञानम तद ब्रह्म इति अवधारयेत्, तद ब्रह्म इति अवधारयेत्, तद ब्रह्म इति अवधारयेत्। एमती अछि ना हम माने पढ़िथिले विवेक चूड़ामणि रे, मन थी आपन को मुझे मन पकई दउछ आपन को। विवेक चूड़ामणि रे ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, अर्थात सही ब्रह्म ही तुम्हें ये भावना करो। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्तियत, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, यत्परं सकलवाग्गोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषा, शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यत्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि।
ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। निज आत्मा भितरे भावना करो कि तुम ही ब्रह्म तत्त्वमसि। ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। सेटा तो बड़ा सुंदर ट्यून रे कहा जाइछि। एठी मध्ये सेही स्टाइल रे कहउछन्ती तद ब्रह्मे इति अवधारयेत्। से ही ब्रह्म की ब्रह्म। ब्रह्मर लक्षण कौन तटस्थ लक्षण तीनटा। यल्लाभात् नापरो लाभः, यत् सुखात् नापरो सुखम, यद ज्ञानात् नापरो ज्ञानम। फिर आगे कहउछन्ती थरे जतले एमती ज्ञान हे जिवो ना बस आत्मतृप्तश्च मानव यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। से केमती हबो ना आत्मरति ही। रति शब्द हम व्यवहार करूँ काव्य शास्त्र रे। पुरुष स्त्री संभोग को रति कहते। ये कुछ आत्मार ही रति से करते निजे निजे ही रमण करते। आत्म क्रीडा रे आत्मार ही क्रीडा करते निजे निजे खेलते। आत्म मिथुन आत्मा सहित ही संजोग हुंते आत्मानंद प्राप्त करे उपनिषद रे कह जाइछि। अच्छा गीतार जो तृतीय अध्याय 17 नंबर श्लोक रे कहउछन्ती यस्त्वात्म आत्मरति ही। एठ मध्ये आत्मरति आत्मतृप्त एंड आत्मसंतुष्ट तीन शब्द कहउछन्ती रति तृप्त संतुष्ट। मु कहिथिली सुखर तीन प्रकार वृत्ति प्रिय वृत्ति मोद वृत्ति प्रमोद वृत्ति एमती बुझा जाए। पंचकोश बेल को आनंदमय कोश बुझाई तत्वबोध रे। प्रिय वृत्ति माने जतले आमे जानिले सपोज जने माँ जानिला के ता पुओ आसीबो 20-25 वर्ष हेलाने बाहर को जाइथिला एवं से खबर देछि आसीबो सुनी कि जो सुख हुए ना ता होछि प्रिय वृत्ति। जतले पुओ को देखिला दूर रो जो आनंद आसे से होछि मोद वृत्ति। आ जतले माँ प्रणाम करे ए पुओ प्रणाम करे माँ आलिंगन करके तब कोलाग्रत करे एवं शुंगी दिए मुंडरे ता होछि प्रमोद वृत्ति प्रिय मोद प्रमोद। ये होछि सुखर क्रम। रति शब्द एवं तृप्त शब्द एवं संतुष्ट शब्द व्यवहार केमते होछि एमती व्यवहार किसी एग्जैक्ट कही होबनी किंतु जनरली स्त्री भोग को रति कनेक्शन रे निया जाए इंद्रिय भोग स्त्री पुत्र आदि। तृप्त शब्द रे मनुष्य जो भोजन करुच्ची जल पीऊँची कौन टे खाइला तृप्ति है। संतुष्ट रे धन सहित संतुष्टि संतुष्टि मिल जाए हाँ धन प्राप्त हो कहते तीन टा जो अच्छी ना रति तृप्त एवं संतुष्ट तीन टारे से परे से आत्मा ही रति आत्मतृप्त आत्मरति आत्मसंतुष्ट। तापाई बाहर इंद्रिय भोग भोजन जल आ धन आदि आवश्यक नहीं। या को ही गीतार कह जाइछि एमिति प्राप्त करे जे आवश्यक नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अर्थात ताको एमते प्राप्त कर दो जे आउ बिल्कुल आवश्यक नहीं प्राप्त करिया पय। षष्ठ अध्याय 22 नंबर श्लोक रे जोटा मु एबे कहली आपण यम लब्ध्वा अर्थात परमात्मा प्राप्ति रूप को लाभ को प्राप्त कला परे आउ कौन से लाभ आवश्यक नहीं। एटा हमें देखिथिले ना यल्लाभा ना परो लाभ यल्लाभा ना परो लाभ तो यम लब्ध्वा चा परम लाभ गीता रे कहले से स्टाइल रे मन्यते नाधिकम ततः से जानी दिया कि आउ किछ नाही पाइबा पे यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि न चिन्त्यते।
ଏବେ ସେଇ ଶୈଳୀରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଏଠି ତିନିଟା ଥିଲା ଶ୍ଲୋକ 54 ରେ ଲାଭ, फिर सुख और ज्ञान को लेके एवं सेमती दृष्टवा आउ हेबाटा आउ जानिवाटा 55 यदृष्ट्वा न परम दृश्यम यदृष्ट्वा न परं दृश्यम् यद्भुत्वा न पुनर्भवः यद्भूत्वा न पुनर्भवः यज्ञात्वा न परम ज्ञेयम् यज्ञात्वा न परं ज्ञेयम् तद्ब्रह्मेत्यवधारये तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्म इति अवधारे ताको ही ब्रह्म बोली भाव ब्रह्म भावना कर अद्वैत भावना ब्रह्म भावना कौन यदृष्ट ना परम दृश्य जार दर्शन हो गला पर आउ देखि हबनी आउ आवश्यक नहीं देखिया आको भक्ति दृष्टि रे जदि आमे देखिवा ना बुझिया पे हेले भक्तिर आवश्यक पड़ियो ना सूरदास अंधा थिले भगवान कृष्ण निजे कान्हा ही कि आसंती सूरदास पाखु आम उपनिषद गंगार 3टा सीरियल अच्छी छोट छोट 51टा भीतर 3टा अच्छी सेठी षोडश संस्कार को यही कृष्ण एवं सुधा माने सूरदास प्रसंग कह सूरदास जीवनी मध्य रही कृष्णंकर जन्म आदि भी रोचे बड़ा इंटरेस्टिंग है आसी कथा कहते कृष्णंकर कथा तो सूरदास इच्छा कले जीवाई कहले अरे बालक से तो बालक है आसते ना तू मत कान्हा विषय एत कहूचु कान्हा निजे कहते मोर टे इच्छा हूँ वृंदावन जावाई मु तो अंधा हूँ जानी नहीं हाँ क्या बात है मैं ले लूंगा ना आपको मैं जानता हूं मैं सब जानता हूं मैं ले लूंगा तेणु बाड़ीटे धरती सूरदास पछरे आर बाड़ीर प्रथम अगटा को धरती कृष्ण कथा कहते सूरदास अनुभव कले ये कृष्ण तो नुह ये जो बालक मो पाक आसिकी कथा कहूला बोधे कृष्ण बोले धीरे धीरे से बाड़ीटा को नहीं 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 छुईदे छुईदेला पर भगवान अदृश्य हो गए फिर पर भगवान दर्शन देले सुंदर रूप आहा भगवान कर अपरूप रूप श्यामल वर्ण सुंदर रूप देखे फिर कहले बर माग प्रभु आपण तो दर्शन हो गला सूरदास तमे अंध तमे जब चाहूच मु आखि देवी कहा जाए कथा बहुत सुंदर मर्म मार्मिक प्रभु आपण को देखला पर आउ ए जगत को कहीं मु देखिया पे चाहिए कारण आपण जगत रा तो रहिबो ना देखिले वेदांत दृष्टि मध्य जगत रा तो रहिबो मु आपण को देखिबे आपण को देख सारे मो मन भीतर से आपण को ही देखिबे आ कौन दरकार मोर जगत को देखा पे निजांतर्गतम अर्थात से परमात्मा को कौटी अच्छा निज भीतर ना निजांतर्गतम से मु काली ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कहून ये जो जगत का कौन ये केवल कल्पना ये रिफ्लेक्शन विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजंतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया जमती स्वप्न रे आमे सब जो देखुछु जणे रास्ता रे जाउछि होटल रे जाकर खाउछि पैसा नहीं बेले मैनेजर बाड़ौछि
फिर चिल्लौछि, फिर पुलिस आसिक नहीं जाउछि, फिर जेल रे जाउछि, फिर परिचय लोक ताको बेल करके नौछन। एटा गोटे स्वप्न देखले। तो बर्तमान बाहर कौन देखले? बाहर देखले कि रास्ता रे चलुछि, से रास्ताटा कौन? मन ही। होटल रे खाइले, से जो लड्डूटा खाइले, से लड्डूटा बाहर एवं लड्डूटा खाइकी भितर को गला, सी भी मन, बाहर मन, बाहर लड्डू भी मन, जो भितर को गला भी मन, शरीरटा भी मन, जेल भी गले मन, सब किसी मन है। निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिरूप, माया जगो ही बाहरे, मनर प्रोजेक्शन जगु बाहरी सब देखा जाउछि, सतरे भितर ही अछि, कौन सी हेनी तत्वटा। सेमिति सूरदास कहते मते मु तो भगवान आपन को देखुछि हृदय भितरे, निजांतर्गतम भगवंतम पश्यामि, मो मो भितरे मु आपन को देखुछि, भवंतम पश्यामि। फिर मोर ए जगतम विश्वम कहीं देखिबी? विश्व ए दुख भरा, ए कंटकपूर्ण आउ मोर दरकार। फिर आउ गोटे भावना देखो जोटा कि एग्जैक्ट आसियो कौन? ए आपण को देखला पर आउ कौन देखिया दरकार? एटे यदृष्ट ना परम दृश्य, आपण को देखला पर मोर आउ आवश्यक नहीं देखिया पे। यद भूत्वा न पुनर्भवः, जेड़ा हेई जिवा कथा आउ कौन हो? आउ किसी आवश्यक नहीं, जहाँ ही गला प्राप्ति ही गला, फिर आउ जन्म आवश्यक नहीं। प्राप्ति ही गला पर संसार जन्म होबनी। यद भूत्वा न पुनर्भवः, संसार पुनरावृत्ति ही विवेक ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र रे कह जाइछि कौन? थरे हे गला पर ना आउ मिले नहीं, पुनरावृत्तिर भवाम्बो विदौ। ये जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र ना, किछि किछि स्तोत्र गाइबाटा ही मजा है। शार्दुल विक्रीडित रे गाई दउछु मु, यस्यैवं स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते, साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात्करणादभवन्, यत्साक्षात्करणादभवन्न पुनरावृत्तिं भवाम्भोनिधो, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यद्भूत्वा न पुनर्भवः, यत्साक्षात्करणे भवेन्न पुनरावृत्ति। देखले जहार साक्षात कला परे, आत्म साक्षात कला परे आउ आवृत्ति हुए नहीं, पुनरावृत्ति कोठी? भव अंभो भवाम्बोधि, भवाम्बोधिरा हुए नहीं, भवाम्बो भवाम्बो निधो, भवाम्बो निधो। अंभो पानी, भव संसार, निधि पानीर निधि सागर, भवाम्बो निधौ आउ दरकार पड़ने। यज्ञात्वा ना परम ज्ञेयम, जहाँ को ज्ञान प्राप्त कला पर आउ ज्ञेय आहु जानिबा आवश्यक पड़े नहीं, आहु जानिबा किसी बाकी रहे नहीं, सी होछि ब्रह्म। कारण ब्रह्म होचे स्वतः सिद्ध, परतः सिद्ध नहीं, स्वतः सिद्ध। थरे ब्रह्म को जानिदेला माने अपरोक्ष ज्ञान ही गला परे स्वतः सिद्ध ला। स्वतः सिद्धे अतः शब्दात अपरोक्षम प्रजायते, स्वतः सिद्ध ही जाए अपरोक्ष ज्ञान, आउ कौन से ज्ञान आवश्यक नहीं। फिर वर्तमान कौन कहते यही तटस्थ लक्षण ही चलছে। दीर्घमूर्धमध पूर्णम
तिर्यगूर्ध्वमधः पूर्णम् सच्चिदानन्दमद्वयम् सच्चिदानन्दमद्वयम् अनन्तं नित्यमेकं यत् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तीर्यक अर्थात तीर्यक माने सबु दिशाए, तीर्यक तले नीचे, तीर्यक माने नीचे, तीर्यक जोनि कौन, जो नीचे जोनि। ऊर्ध्वम, तीर्यक जोनि नीचे, ऊर्ध्वम ऊपरे, अधः एटाको मझिरे कुआ जाए पूर्णम सच्चिदानंद। जुआड़े जीव से पूर्ण सच्चिदा, ये स्वरूप लक्षण भी आसीगला। पूर्ण होची स्वरूप लक्षण, सच्चिद आनंद, अद्वयम नेति नेति लक्षण, अनंतम नेति नेति लक्षण, नित्यम से नित्य, यत तद ब्रह्म इति अवधार। तीर्य ऊर्ध्वम अधः पूर्णम, एटा गोटी है अर्थात सब दिशा नीचे ऊपरे सबुआड़े से पूर्ण परमात्मा ही पूर्ण ओतप्रोत सच्चित आनंद स्वरूप लक्षण से ही सच्चित आनंद स्वरूप। स्वरूप स्वरूपमेव मे सत्वम न तो धर्मो न भस्तवत, एटा स्वरूप लक्षण धर्म नु जमते आकाश हो अनंतम अनंत नित्यम तद ब्रह्म इति अवधारय। जुआड़े जीवत परमात्मा ही परमात्मा देखियो। नारायण सूक्त रे नारायण उपनिषद, नारायण सूक्त को भी जीवा, नारायण उपनिषद रे कहउछन्ति कोन सबु किछि नारायण, दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगं सर्वं यद्भूचं यत्तभव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धदेव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। देखले ज्वाले जीवे सब नारायण। ओम नित्य नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शुक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धदेव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। कितने सुंदर ना। अर्थात कालमय नारायण, दिशश्च नारायण, ऊर्ध्वश्च नारायण, अधश्च नारायण, अंतर्बहिश्च नारायण, नारायण वेदगम सर्वम, सब किसी है नारायण। पुरुष सूक्त अच्छी, फिर नारायण भी सूक्त अच्छी, अपन जानी सेटा मध्य से कहते एटा नारायण उपनिषद आउ नारायण सूक्त रे कौन कहते देख, नारायण सूक्त रे कहते सबुआड़े से ही परमात्मा ही पतिम विश्वस्येत्मा स्वरगम शाश्वतकम शिवच्युतम नारायणं महागेयं विश्वात्मानं परायणः नारायणो परो ज्योतिरात् नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणो परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यत्किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिब अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अर्थात
जहाँ भी तुम देखुच दृश्यते श्रूयते अंतर्बहिष्य सबु नारायण है। बर्तमान आ गोटे कौन कहते देख कौन अतद्व्यावृत्तिरूपेण अतद्वृत्तिरूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् वेदान्तिर्लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दमेकं यत् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारये तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अखण्डानन्दरूपस्य अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलभाश्रिताः तस्यानन्दलभाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन ब्रह्माद्यस्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः। श्री अद्वय परमात्मा अद्वय अखंड एक रस आनंदमय तत्व परमात्मा को अतद्व्यावृत्ति लक्षण द्वारा अतद्व्यावृत्ति माने नेति 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 लक्षण द्वारा निषेध करके ये जो वेदांत रे वेदांत उपनिषद रे जो कहा जाइछि मु ब्रह्म मु द्वय नुह अद्वय खंड नुह खंड एमिति जो कहा जाइछि सेई को ही ब्रह्म जान आ ये जो अखंडानंद परमात्मा जो आनंद लवलेस भी टिके भी जो मनुष्य पाउछि ना चिंटी ठारो नहीं कर ब्रह्मा सबू परमात्मा ही अंश परमात्मा को जो ही पाते निज निज शक्ति अनुसार मिले एमोइबा माइक्रो रे टिके थाए चिंटी रे आउ टिके हाथी रे आउ टिके एमती तो शरीर अनुसार शक्ति अनुसार ये आनंद को प्राप्त करते किंतु सही अखंडानंद परिपूर्ण ताकू तुम्हें प्राप्त करो अनुभव करके अखंडानंद स्वरूपो हम या ही अनुभव करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आमर गुरु परंपरा नियम अच्छी कौन से गोटे शास्त्र प्रारंभ है कि जो सरुचि शास्त्र सरले गुरु दक्षिणा देवाई व्यवस्था हुए तेणु काली पहरदिन 2 दिन और क्लास अच्छी ये 2-3 दिन भितर जी जहाँ गुरु दक्षिणा देवाई चाहते देवे तो